Sir, good evening. Well, sir, good evening. गुड इवनिंग। Yes, sir. कैसे sir? बस बढ़िया। Yes, sir. So shortly we will start sir session within 1 2 minutes, 2 3 minutes. ओ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. रंजन स्लाइड्स ओपन कर रखिए ना। हाँ सर, तैयार है। मैं और शेयर कर लेता हूँ, एक बार वो बता नहीं, देना। नहीं इनके अगर सर के तो हाँ नहीं, मैंने सेव करके तैयार है सर, मैं शेयर कर दूंगा। एक बार कंफर्म कर देंगे सर? हाँ विजिबल है। ठीक है, ये कंफर्म करना। ठीक है सर। सर गुड इवनिंग ऋषि सर। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग ऋषि सर। गुड इवनिंग राकेश सर। गुड इवनिंग बाबू सर। सर गुड इवनिंग।
So good evening, Sunil sir. Vivek sir will join within 2 to 3 minutes. Sorry for the inconvenience. So good evening, Vinod sir.
Sir, my voice is audible? Yes, sir. Who is audible? Yes.
Sir, good evening. Vivek, sir, good evening. Hello. Hello. Sir, good evening. Very good evening. Sir, good evening, sir. Yes, sir. Sir, should we start, sir? Sorry, I'm a little late. Just got myself free from the class. This case. So shall we start, sir? Sure. Why not? So, sir, I will start with the introductory part. After that, you will start your presentation, sir. Thoda loud. A little louder. Sir, my voice is audible Yes. because of the network problem, sir. Good evening, all the doctors on the behalf of Super Vitalists. I would like to welcome all the respected dignitaries to this advert on the role of MRI in the heart failure. And today we have with us distinguished speakers, Dr. Vivek Mathur sir, and he will moderate the session. And Dr. Vivek Mathur sir is the MD DNB and fellowship in the Society of the Cardiovascular Angiography and Intervention from the USA, and fellowship in the European Society of the Cardiology and heart failure expert, and ESC HFA life certifications Vienna, and presently working as an interventional cardiologist in Gupta Hospital, Ajmer. And also, I would like to request to all the delegates to keep their video on for the better detection and full decision of the MRA. Thank you, everyone, for joining the session. Now, over to you, sir. Okay. So, will you be sharing the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I will share. Okay. Please start. And so, So, at the outset, first of all, let me welcome you all, and I really apologize for starting the session late, but I'm sure you must have had your dinner, and we are ready for some healthy discussion on basically one of the important pillar of heart failure management, which is mineralocorticoid receptor antagonist. So heart failure management has evolved over a period of time. So initially, only management of heart failure congestion was diuretic, but lately you realize that diuretics are a very important component of heart failure management because it makes the patient euvolemic, decrease the congestion, and also makes the patient out of hospital soon. And it in the maintenance doses definitely helps to keep the patient out of hospital. Recurrent admissions are prevented, but it does not translate actually into mortality reduction, if you say so. And for mortality reduction in heart failure patients, few drugs are very important which are essential, and the sequence of adding them may be a little different, and sometimes an individualized approach is required. And these 4 or 5 drugs which are very important are beta blockers, mineralocorticoid receptor antagonists. Then you have an ARNI, angiotensin receptor neprilysin inhibitor, or ACE inhibitor if they are intolerant to ARNI now, and if they are intolerant to both, then angiotensin receptor blockers. Then you have important component which is recently is the SGLT2 inhibitors. Then some of the patients are required to have ivabradine, which is sodium channel inhibitor. So these are the 4 or 5 drugs which are very important in a patient or in the heart failure management. Now, I would just want to know your views about MRA use, how the doctors have been using the MRA. And for example, in MRA, you have 2 basically employed drugs like spironolactone and eplerenone. These are the 2 most preferred drugs which are useful in the, and they have been extensively studied in various trials, and they have proven their
metal in these trials that these drugs do reduce the metal mortality and decrease the hospitalization of the patients in longer run. So next slide. Next slide. इसको स्लाइड मोड में ले लीजिए उसमें अच्छा स्लाइड बोर्ड पे लो उसको है ना हाँ इसको हाँ so just few important points will be just to go through the heart failure management basically this is just the agenda of the meeting. Next slide. So we will be in the few minutes we'll just talking about the MRA placement and utilization in heart failure and what are the apprehensions and what are the real threats when you're using the MRA and what should you look for and in these patients what are the things we are seeing. Basically you add a drug if there is a drug to drug interaction or any side effect which is enhanced by adding these drugs, or what are the other things that you should be very much aware of. And definitely it is just then a mutual discussion to talk about the role of MRAs. Next slide. So just to give you an overview, we are having a lot of patients for heart failure because since we are a diabetic and the IHD ischemic heart disease capital, so we have a lot of heart patients and ultimately usually the ischemic the burden is very high, and after an acute MI usually these are the patients who have reduced systolic functions which we classified as heart failure with reduced ejection fraction. And other than these we have non-ischemic cardiomyopathy in which also the heart failure with reduced ejection fraction is seen. Then you have mid-range or ejection fraction and preserved ejection fraction, those people who have raised NT-proBNP and the systolic function. When you do an echo, the echo is all right, but still the NT-proBNP is high. The sign and symptoms are very much of heart failure, for example, swelling and dyspnea on exertion. So all these things suggest the heart failure. About 2% of the population, if you see, are having heart failure. It increases with age and it is prevalent mostly in the elderly people. And if you see that the prevalence in India is also high, if you see that the 1% of total population is there, that amounts to 8 to 10 million people. And every year new people are being added as far as 1.2 million, nearly 2 million cases are added every year. Mortality is as close to a deadly cancer. Usually about 0.1 to 1.16 million people die every year because of heart failure. Next slide. So if we start the discussion here, then I would just like to see, we just like to talk what percentage of heart failure patients approach you in NYHA class 2, 3 and 4? How many heart failure patient goes undiagnosed in India at an early stage and why? So this is a pertinent question that in clinics, what are the kind of patients that we are really seeing? So I would like to start the discussion. I would like to know your important opinion because we are working in different kinds of setups. So some of them are working as clinicians, some of them are working in government hospitals, some of them are having private hospitals. So more or less the burden of heart failure is similar. So what are the types of patient that you are getting basically? And do you think that these patients are not diagnosed because of some issues, or do you think that the patients are very well diagnosed easily? So what is your opinion? Be frank in that. So let's take the discussion onwards. Dr. Vinod, will you like to say anything? Dr. Vinod Kumar Aswal, sir. Anybody, please, let's join the discussion. So, Dr. Manish. Yes, sir. Good evening, everyone. So, आराम से बात करेंगे अपन लोग, and then basically we are just talking about कि हमारे पास जो patients आते हैं उसमें कोई जैसे जो heart failure के patients होते हैं और जो COPD के patients होते हैं वो ज्यादातर similar से complaints लेके आते हैं.
कि भाई सांस फूल रहा है, तो कभी कभी पेशेंट्स डायग्नोसिस में COPD में चले जाते हैं और समटाइम्स हार्ट फेलियर अपन डायग्नोस कर ही लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं उनमें से अगर अपन पेशेंट्स देखें तो ज्यादातर पेशेंट COPD के निकलते हैं या हार्ट फेलियर के अल्टीमेटली निकल के आते हैं? नहीं सर, काफी पेशेंट्स है जो अपने पास में NYHA ग्रेड 3 और 4 के साथ में आते हैं बेसिकली, बिकॉज सर आई एम वर्किंग इन टर्शियरी हॉस्पिटल, MGH हॉस्पिटल जोधपुर, Very good. where patients mostly admitted with acute LVF, or we can say NYHA grade 3 or 4 only, because NYHA grade 1, mostly in Indian scenario, the patients are, because when there is an index event, the patient can manage because of compensatory mechanism. So most of them are asymptomatic. So they don't seek any medical attention and any clinics. So we cannot find out the patient of heart failure in NYHA stage 1. So we are mostly the patients we are finding in our hospital or our clinic scenario, they are already in grade 3, in stage 3 or stage 4. Yes. So very well said, Dr. Manish. जो आपने कहा कि जो मोस्टली पेशेंट्स अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो वो डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो क्लिनिक्स में नहीं आएंगे। तो और जो क्लिनिक्स में आते हैं ज्यादातर वो सिम्टोमेटिक होते हैं और फ्रेंकली अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि दैट आई एम डिस्निक और मुझे स्वेलिंग हो गई है, मुझे सांस फूल रही है। तो देन वी कम टू नो एंड हम जांचें कराते हैं, जैसे ECG, इको कराते हैं, देन वी कम टू नो कि इसको प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम माय पॉइंट इज दैट कि जो क्लास 1 और 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको डायग्नोज कैसे किया जाए, बिकॉज एक जो टिप ऑफ आइसबर्ग होती है, जो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाते हैं वो तो कम होते हैं, बट जो सिम्टोमेटिक नहीं होते और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जो कि फ्यूचर में ज्यादा हो जाएंगे या जो हो जाएंगे, उनको डायग्नोज करने के लिए वो पेशेंट हमारे अनडायग्नोज रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स के साथ आते हैं, जैसे सपोज आपका पेशेंट जो डायबिटिक है और हार्ट IHD का पेशेंट है, या आपका ऐसा पेशेंट है जो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है या CKD का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का, बहुत बार आप देखेंगे कि ये जो पेशेंट्स अगर आप इनको अपन इवैल्यूएट करें, फॉर एग्जांपल इको के द्वारा करें या NT-proBNP करा के देखें, तो आपको लगेगा कि ये पेशेंट्स भी एक्चुअली अनडायग्नोज हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं, जो कि ये पेशेंट टर्न आउट हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। जैसे पेशेंट है 200 का BP चले जा रहा है या 180 का BP चले जा रहा है काफी साल से, यदि आप उनका किसी मोमेंट पे इको कराओगे या कभी आप उनकी NT-proBNP कराओगे या उनके पैर की तरफ देखोगे तो बहुत बार आपको स्वेलिंग नजर आएगी, और आप रिट्रोस्पेक्ट में जब चेक करोगे तो आपको ऐसे पेशेंट्स एट रिस्क हार्ट फेलियर वाले पेशेंट लगेंगे। तो मेरा ये सबमिशन था कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो पेशेंट्स कंप्लेंट्स लेके 3rd और 4th NYHA स्टेज में आते हैं वो पेशेंट्स डेफिनेटली सिक होते हैं ज्यादा, and they are the people who require invasive or therapy. So my next point of discussion is, what are the diagnostic and prognostic tools used by you for your heart failure patient? For example, एक patient आता है तो हमारे diagnostic tools ज्यादातर क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हमें इन investigations हमें उसके लिए सोचनी पड़ती है, और अगर आपको उसको प्रोग्नोस्टिकेट करना है कि भाई आप कितने ज्यादा बीमार हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होने चाहिए? जैसे एक पेशेंट है तो उसको डायग्नोज कर दिया, अब हमको उसको बताना है कि भाई आप कितने बीमार हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या बातें ऐसी अपन को डिस्कस करनी चाहिए या जो अपने लेवल पे अपने को अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि जिससे हम ये माने कि ये पेशेंट ज्यादा सिक है, कम सिक है, और इसका फ्यूचर में इसको इवैल्यूएशन किस तरह की होगी? तो जो फ्रेंड्स हैं हम सब जो भी अपनी ओपिनियन रखना चाहें, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर Yes, sir. Good evening to all. Myself, Dr. Vikas Pal. I want to say, sir, we can use 2D echo and percentage. We can see the ejection fraction, and also we can use NT-proBNP for prognostic tool as a prognostic tool. Yes. So proBNP कितना बढ़ा हुआ है, कितना ज्यादा है, इसके आधार पर अपन देख सकते हैं कि पेशेंट ज्यादा सिक है, उसका रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है, और he has decreased ejection fraction and grade of dyspnea,
These are, and chest X-ray also is a great tool for the diagnostic. We Absolutely, can see absolutely. the Very human good. patient having. नहीं डॉक्टर विनोद आपने बिल्कुल यू हैव गॉट अ वेरी गुड ओपिनियन कि जो मोस्टली द पेशेंट्स दैट वी आर सीइंग सो वंस दे कम विद द सिम्पटम्स then you make an opinion and then you try to diagnose with the basically the various investigations. So one of the most important things जो हम लोग initially diagnose करने के लिए करते हैं एक तो एक्सरे, दूसरा important point होता है ECG. तो start with अपन ECG, chest X-ray, 2D echo और इसके अलावा डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ब्लड इन्वेस्टिगेशन और इमेजिंग भी हम एडवाइस कर सकते हैं. सो इनिशियली जैसे जो एक डायग्नोस्टिक टूल है एक्सरे यूजुअली विल डिफरेंशिएट बिटवीन जैसे कोई पल्मोनरी प्रॉब्लम वर्सेस हार्ट फेलियर. सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे कहूंगा कि जैसे जो एक्सरे होता है उसमें जो पल्मोनरी इडिमा की वजह से जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल सा दिख रहा है तो पेशेंट जरूरी नहीं है कि मतलब नॉर्मल होते हुए भी उसको सिम्टम्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अदर फाइंडिंग्स जो हमें एक्सरे में मिलती हैं, एक तो माइल्ड सा प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है. जैसे अपन कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स देखेंगे तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन दिख जाएगा, हार्ट साइज बड़ा मिल जाएगा, कार्डियक साइज बड़ा मिल सकता है. तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है, एक तो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जो पल्मोनरी वेन्स जो अपना हाइलम होता है एक्सरे में उससे निकलती हैं और व्हाइट कलर की ऊपर की तरफ जाती हैं. जैसे जो इसको हम लोग बेसिकली हॉर्न साइन बोलते हैं, जो बेसिकली मुड़े हुए सींग होते हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से व्हाइट कलर की पल्मोनरी वेन्स डायलेटेड मिलती हैं. तो दैट सजेस्ट कि उसका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ है. तो एक्सरे में मोस्टली जो डायग्नोसिस होता है, एक तो हार्ट साइज, सीटी रेशियो बढ़ा हुआ, प्लूरल इफ्यूजन और दोनों साइड अगर व्हाइटनेस ज्यादा आ रही है, और तीसरा पल्मोनरी वेन्स बढ़े हुए हैं. और इंटरलोबर कभी कभी बहुत सटल सा होता है कि जो अपना इंटरलोबार फिशर इडीमा मिल सकता है. जैसे जैसे राइट और लेफ्ट में आप अगर राइट में देखेंगे तो एक लोबा एक लाइन होती है जो अपर लोब और मिडिल लोअर लोब को डिफरेंशिएट करती है. वो उसमें अगर फ्लूइड आ जाता है तो व्हाइट सी एक लाइन दिखती है, तो दैट इज नोन एज इंटरलोबार फिशर इडीमा, जो कि बताती है वो. सेकंड नंबर पे डायग्नोस्टिक के हिसाब से अगर अपन माने तो ईसीजी है. तो ईसीजी में आपको क्या लगता है कि क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि प्रोबेबली इसको हार्ट फेलियर की तरफ ज्यादा है और दूसरी इटियोलॉजी की तरफ पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है? या ईसीजी में क्या क्या साइंस हैं जो अपन को बता सकते हैं कि हाँ जो हम देख रहे हैं वो हार्ट फेलियर की तरफ ज्यादा है पेशेंट? डॉक्टर रणवीर सर, आपको क्या लगता है कि जैसे अपन ईसीजी अपन देखते हैं तो कौन कौन से ईसीजी मार्कर्स हैं जो अपन को हेल्प करते हैं? आप जैसे मुझे हाँ आप बताएं सर, मतलब जस्ट डिस्कशन. लेफ्ट डेफिनेटली डॉक्टर ऋषि. यस सर. जी सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मैं अभी एक सीएससी पे पोस्टेड हूँ सर, जाजपुर सीएससी पे. ईसीजी में जनरली जो सर हमें दिखाई देता है, जनरली कोई एमआई के चेंजेस हो, इसमें चेंजेस हो, साथ में एलवीएच और एलईडी के चेंजेस, तो यहाँ से हमें काफी क्लू मिल जाते हैं कि पेशेंट माइट बी इन हार्ट फेलियर. साथ में क्लिनिकल सिनेरियो तो रहता ही है सर. क्लिनिकल सिनेरियो के साथ में हमें काफी कुछ हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से काफी कुछ मिल जाते हैं. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. और ईसीजी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एक दो पॉइंट्स मेरे को जो लगते हैं वो जो अपन को डिस्कस, जैसे फर्स्ट एक तो हार्ट रेट कितनी चल रही है उस पेशेंट की. जैसे आपके पास पेशेंट आया, कंजेशन रिपोर्ट कर रहा है, सबसे पहला देखना है कि आपको मतलब जो मुझे लगता है कि एक तो हार्ट रेट. सपोज आपका पेशेंट टैकीकार्डिया में है तो वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है हार्ट की. तो अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई है, 100-110 चल रही है, तो आपको देखना है कि ये क्या मतलब कंजेशन वाले पॉइंट की तरफ हो सकता है. और एक्सट्रीमली ब्रेडिकार्डिया की तरफ हो, जैसे 40-50 हो, तो ऐसे पेशेंट भी हार्ट फेलियर में होते हैं. जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में है, सपोज करो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पेशेंट की नब्ज 40 से 50 के बीच में रहती है और उसको कंजेशन होता है काफी, क्योंकि वो सपोज 1-2 दिन से उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पड़ा, तो वो पेशेंट क्या आपको हार्ट मतलब वो बताएगा कि भाई मुझे सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, और आप ईसीजी में देखो तो सीएचबी मिल जाएगा.
थर्ड इंपॉर्टेंट होता है जैसे टेकिकार्डिया में अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है कि साहब मैं बिल्कुल ठीक था और अब मुझे धड़कन लग रही है और मेरी सांस फूल रही है, तो आपका पेशेंट जैसे अगर हार्ट फेलियर के साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन है तो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में हार्ट रेट बढ़ जाती है और पेशेंट कंजेशन में मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो QRS ड्यूरेशन, सपोज लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है पेशेंट को या RBBB है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपको ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को लो इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट क्लूज जैसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है लॉन्ग टर्म से तो उसके LAD लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल जाएगा। फोर्थ LVH के फीचर्स हैं तो भी जैसे HOCM का पेशेंट है तो उसके अंदर काफी आपको ग्रॉस हाइपरट्रॉफी मिल सकती है या सेप्टल हाइपरट्रॉफी की वजह से साइंस मिल सकते हैं। तो ये वाले जो साइंस होते हैं ना जो मोस्ट कॉमनली मिल जाते हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा पुराने MI के साइंस, जैसे उसको कभी इंफीरियर वॉल MI हुआ तो QS पैटर्न क्यू वेव्स मिलेंगी, आपका पेशेंट को लार्ज एंटीरियर वॉल MI हुआ है तो QS पैटर्न मिलेगा आपको, V1 से V6 R वेव नहीं होगी और QS ही दिखेगा। तो ऐसे पेशेंट्स का जो होता है ECG काफी हेल्पफुल होता है। ECG इकोकार्डियोग्राफी, तो इकोकार्डियोग्राफी काफी सेंट्रल है पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने में मिड रेंज, प्रिजर्व्ड और लो इजेक्शन फ्रैक्शन में। इसके अलावा जैसे अपन CT स्कैन कराते हैं बहुत बार, तो वो बेसिकली पल्मोनरी पार्ट को रिव्यू करने के लिए होता है कि उसमें अगर सपोज कोई निमोनिया है या प्लूरल इफ्यूजन है तो उससे अपन को डायग्नोस्टिक मिल जाएगा। और कभी कभी अपन जैसे, और मोस्टली पेशेंट का NT-proBNP कराते हैं अगर वो हायर साइड पे है की तरफ ज्यादा है। तो प्रोग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे एक तो LV इजेक्शन फ्रैक्शन, यदि पेशेंट का नॉर्मल से कम इजेक्शन फ्रैक्शन है तो उसका प्रोग्नोसिस नॉर्मल लोगों से कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपका बिल्कुल बढ़िया है, यू आर जस्ट नॉर्मल। लो इजेक्शन फ्रैक्शन हैज गॉट अ इंपॉर्टेंट रिडक्शन इन लाइफ। दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि NT-proBNP, अगर NT-proBNP बढ़ा हुआ है पेशेंट का तो रिकरेंट एडमिशंस और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली होती रहती हैं। सो वेरी गुड, ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी मार्कर्स होते हैं जैसे सीरम आयरन स्टडीज कराएं अपन, आयरन अगर देखें तो अगर लोगों के आयरन कम है, हीमोग्लोबिन तो ठीक है आपने नापा 11 और 12 का हीमोग्लोबिन है, लेकिन आपने आयरन स्टडी कराई और उसमें सीरम ट्रांसफरेंस सैचुरेशन कम आ रहा है, तो भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे को more symptomatic रहेगा that we have covered. Next slide please. So this is Vivek sir, your voice one important update 2021. विवेक सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. Hello, am I audible? वॉइस ब्रेक, हाँ अब audible. Am I audible? Hello. Yes, sir, voice break हो रहा है. Okay. Am I audible right now? Yes. Okay. Thank you. Sorry inconvenience क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल इंटरनेट है यहाँ पे. Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिसीजन पाथवे फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट। सो MRAs का जो प्लेस है वो हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द MRA टू द पेशेंट?
अपन ने पेशेंट देख लिया, डायग्नोज कर लिया, प्रोबीएनपी बढ़ा हुआ है, कैसे आप ड्रग्स को ऐड करोगे? जो कहाँ पर एमआरए प्लेस्ड है? हेलो महेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज है सर, बीच में ब्रेक हो रही है। नाउ ऑडिबल। ऋषि सर, आपके ओपिनियन कुछ? सर योर माइक इज म्यूट सर। यस सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बीच में थोड़ा सर इज उसमें सारा शायद नेटवर्क नहीं है सर के यहाँ पे। हाँ, सर इज आस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग द where we can add MRA. जनरली एमआरए आफ्टर इनिशियल लेवल ऑफ डायग्नोसिस के बाद में हम ऐड कर देते हैं। हेलो यस हेलो यस सर। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, आपका हाँ सर, अब आ रही है। हेलो हाँ तो बेसिकली हम लोग एमआरए जो ऐड करते हैं, जैसे पेशेंट्स आ गए और तो यूजुअली द इनिशियल ड्रग्स दैट वी यूज आर दी डायरेटिक्स। तो वंस वी हैव स्टार्टेड द डायरेटिक्स, डायरेटिक का एम खाली ये होता है कि आप उस पेशेंट को यूवोलेमिक कर दो। यूवोलेमिक का मतलब है कि कंजेशन अगर है तो डायरेटिक्स हमारी हेल्प करती हैं। जब हम डायरेटिक ऐड करते हैं तो इनिशियली जो ड्रग्स हम ऐड कर सकते हैं, तो एमआरए ऐड कर सकते हैं। एमआरए थोड़ा सा वैसे लेट ऐड करते हैं। वंस यू स्टार्ट द पेशेंट ऑन डायरेटिक, पहले डायरेटिक ऐड करके देन यू हैव टू ऐड आजकल SGLT2 एट द सेम टाइम ऐड कर सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर यानी डापाग्लिफ्लोजिन और ये वाले पेशेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट ड्रग जो होती है वो यूजुअली बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। वंस यू हैव एडेड बीटा ब्लॉकर्स और SGLT2 आपने स्टार्ट कर दिया है पेशेंट को, तो थर्ड ड्रग आप आर्नी और एप्लिरोनोन के बारे में सोचते हो कि भाई एप्लिरोनोन ऐड करें। वंस यू हैव एडेड आर्नी के साथ में आप फिर उसके बाद में एप्लिरोनोन ऐड कर देते हो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। आपके ओपीडी पेशेंट्स में अगर है तो लिटिल लेट स्टार्ट कर सकते हो एक एक करके, बट अगर एडमिटेड पेशेंट है तो यूजुअली आर्नी स्टार्ट कर देते हैं 24 to 48 आवर्स में, अगर ब्लड प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम लो डोज बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करके you can start. तो अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंस है तो, या कोई ऐसा ओपिनियन आप शेयर करें तो आप बताएं। डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर रणवीर, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर ऋषि। हेलो महेंद्र जी। हेलो सर। यस, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज सर, बीच में से क्या ब्रेक हो रही है सर? मनीष सर, आपकी ओपिनियन कुछ इसके रिगार्डिंग? First of all, we as there is a congestion or patient is in acute failure or acute pulmonary edema, though we prefer the diuretics. As soon as the patient is euvolemic, then we will get add on ARB, or after 24 to 48 hours we can also add on beta blocker. Both the choices we can add, but we prefer ARB, ACE inhibitor or ARNI with MRA, because in acute failure, because we usually avoid beta blocker up to 48 hours. As soon as as soon as congestion is over and congestion is resolved, we can add on with the beta blocker. For rate control, we can add that particular time with Evabrade also. We can control rate
heart rate with ivermectin also, which is not contraindicated, or we can stay little more safer than beta blocker in acute failure. So this is a very important point raised by Dr. Manish. So you have to use your clinical judgment. Mostly what you have to see is that if the patient has tachycardia, what drug to add, beta blocker or ivermectin. So there have been a lot of studies which shows that the mortality reduction is more with beta blocker, and beta blocker should be the first choice to be added in patients. And ये आपका डर जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हमारे पेशेंट को और कंजेशन या वो तो नहीं हो जाएगा, बट इट स्टडीज हैव टोल्ड कि वंस यू ऐड बीटा ब्लॉकर द स्टेबिलिटी कम्स अर्लियर, एंड जो मोर्टेलिटी रिडक्शन है वो बीटा ब्लॉकर की ज्यादा है आइवरब्रिडीन से. और आइवरब्रिडीन इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग टू बी एडेड इन अक्यूट पेशेंट्स, ऑल्दो ऑफलाइन अपन यूज करते हैं आइवरब्रिडीन को एज एन एड ऑन ड्रग, but usually it is an add-on drug, not the first line drug. So the most important point here is that to start with a low dose beta blocker is important, क्योंकि beta blocker basically pathway में कहाँ act कर रही है? Usually it is acting on the sympathetic pathway. So if you are providing a sympathetic blocker, so वो ज़्यादा सोडियम ऐसे नोड पे काम करने वाली ड्रग जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करती है. और एमआरए जो होते हैं वो मोस्टली अपन इनिशियली एक्ट करते हैं, लेकिन बट अ लिटिल लेटर, यूजुअली आर्नी अपन ऐड कर सकते हैं. सो द अदर पॉइंट हियर इज कि जब हम एमआरए ऐड कर रहे हैं तो पोटेशियम का लेवल्स मोर देन अगर 5 है तो यू शुड बी कॉशियस, एंड इफ यू हैव रीनल इम्पेयरमेंट तो एंड क्रिएटिनिन मोर देन 2.5 केयरफुल. सो हमारे क्लिनिकल सिनेरियो में पेशेंट्स होते हैं, जब अपन पेशेंट्स देखते हैं एंड दे हैव गॉट रीनल फेलियर, जो पेशेंट्स हैं, जैसे सपोज करिए आपने पेशेंट देखा और आपका पेशेंट का 1.5 क्रिएटिनिन है या 1.4 क्रिएटिनिन है, तो ऐसे पेशेंट्स को कॉशियसली एमआरए स्टार्ट करते हैं. इवन फॉर दैट मैटर अपन को एस इनहिबिटर और एआरबी बड़ी कॉशियसली स्टार्ट करनी पड़ती है. सो जब आप ये स्टार्ट करते हो तो आपका जो बेसिकली आइडिया जो क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स कराने का रहता है वो क्या रहता है? जैसे अपन लोग पेशेंट देखते हैं तो कब करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए, थोड़ा रुक के करना चाहिए वापस, या बेसलाइन करके दूसरा करना चाहिए? तो ये क्या मतलब इसके पीछे क्या क्या अपन सोच सकते हैं? Dr. Rakesh Mundra. Yeah. Good evening, sir. Basically, we usually encounter in our OPDs a combo of patients, usually with diabetes, diabetic nephropathy, with azotemia, and they usually present with heart failure. So, by default, some patients are initially evaluated with deranged renal functions, and then we have to manage them when they present in acute LVF or either with mild dyspnea or NIHA grade 1 to 2. And then we optimize them with diuretics. Later on, subsequently, they used to remain with us in hospitals for 2-3 days. And then when usually they come after follow-up after 5 to 6 days, again, we have to repeat after adding these MRAs. Some patients we encounter in OPD of refractory hypertension, already on 2-3 drugs, calcium channel blockers and others. And then we have to add, in case we found the scenario of hypokalemia or with mild azotemia also. In that case also, we usually add this MRAs. So I think clinically we have to decide that when we have to repeat these tests. Absolutely, very well said. आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लिनिकल जो डिस्क्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कहाँ, कैसे और कब ट्रीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्यूट एलवीएफ का पेशेंट आपने आईसीयू में भर्ती कर लिया, अब आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट एम है, एक तो आपने डायरेटिक दी है. कभी कभी जैसे पेशेंट का 1.4 क्रिएटिनिन है, पेशेंट को स्वेलिंग थी, आपने डायरेटिक दिया, आपने 2 दिन बाद देखा तो उसका क्रिएटिनिन वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप डायरेटिक देते हो, आप उसका फ्री वाटर कम करते हो तो वो बढ़ जाता है. तो ऐसे केस में कॉशियसली इमीडिएट एम जो होता है वो ऐसे केसेस में एमआरए और ये ऐड करने का नहीं है. सबसे पहले आपको डायरेटिक से उसका कंजेशन कम करके
देन बीटा ब्लॉकर इज द वन सेकंड ड्रग दैट आप उस समय ऐड कर सकते हैं जब ये अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट को क्रिएटिनिन ठीक है लेकिन पोटेशियम लो चल रहा है, जैसे पेशेंट का आपने देखा क्रिएटिनिन तो ठीक आ रहा है लेकिन पोटेशियम 3.2 है, तो आप इस केस में एमआरए थोड़ा और जल्दी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि जैसे उसका पोटेशियम तो वैसे ही कम चल रहा है, तो आप अगर एमआरए ऐड कर दोगे तो उसका पोटेशियम थोड़ा नॉर्मलाइज भी होगा और उसको अर्ली एमआरए के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। बट मोस्टली आपने जैसे सही कहा कि शुरू में जो बेसिक एम होता है कि भाई आप कंजेशन फ्री कर दो पेशेंट को, और फिर उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तब आप उसको रिव्यू जब कर रहे हो तब आप ये सारी ड्रग्स आप एड ऑन करते जाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि बेसलाइन वैल्यूज आपको मालूम होने चाहिए कि पेशेंट का क्रिएटिनिन कितना है, और क्योंकि जब भी आप ऐसी ड्रग्स ऐड करते हो, व्हेनेवर यू आर एडिंग आर्नी, एआरबी, एस इनहिबिटर और इवन फॉर दैट मैटर एप्लिरिनोन, you have to know the potassium levels and the creatinine levels. So this is very well said कि हमें वो रिपीट भी करना है जब पेशेंट रिपीट में आते हैं 7 दिन बाद 14 दिन बाद, तो then we have to see कि what is the creatinine levels and how much the potassium levels have risen. Next slide. So are these parameters potassium level, creatinine and eGFR tested before and after initial MRAs and how long? So ये हमने डिस्कस कर लिया है कि एक तो बेसलाइन हमको MRA चेक ये लेवल्स चेक करने, एंड यूजुअली दी सब्सिक्वेंट विजिट में जैसे अगर आपने 7 दिन बाद बुलाया, 10 दिन बाद बुलाया, 2 हफ्ते बाद बुलाया, बट मोस्टली 10 डेज के बाद चेक करें तो ज्यादा बेटर है। 14 डेज पे, जैसे अगर 2 वीक्स का टाइम है तो 2 वीक्स पे अपन को चेक करने हैं, बट उससे 2 to 3 वीक्स से ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज डेंजरस पोटेशियम लेवल्स हैं या क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एक पेशेंट देखा था, उसका पहले क्रिएटिनिन ठीक था और पोटेशियम बॉर्डर लाइन था, लेकिन उसका फिर क्रिएटिनिन बढ़ता गया, तो 1 के नीचे था, उसका 1.6 हो गया, तो वो एप्रीहेंसिव हो गया कि क्या हो रहा है। तो मैंने उसका कहा कि हमने फिर उसके पिछले 3 से 4 महीने के प्रेस्क्रिप्शन देखे कि हमने क्या क्या चेंजेस करे थे। तो उस पेशेंट के जैसे मैंने उसको एक तो एम्पाग्लिफ्लोजिन ऐड किया था नवंबर दिसंबर में, उसके बाद मैंने उसके आर्नी ऐड किया। तो जब मैंने ये दोनों ऐड करे तो उसके बाद 3 से 4 महीने में उसका क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो हमने सब्सिक्वेंटली उसका एंटी-प्रोबीएनपी भी हम मेजर कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि जब वो मेरे पास आया कि अपन ये 2 ड्रग्स को एक तो गुप्टुलियो बंद करते हैं थोड़ा, और ये वाली दोनों बंद करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। तो 14 डेज में आया वो पेशेंट, 15 डेज में, और उसका क्रिएटिनिन ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ आ गया, 1 के आसपास। बट एट द सेम टाइम मैंने उसका एंटी-प्रोबीएनपी भी कराया था, तो जो एंटी-प्रोबीएनपी उसका 400 रह रहा था वो करीब 1000 के आसपास आ गया। तो मैंने उसको ये समझाने के लिए करा कि सपोज अपन ये दोनों दवाइयां बंद कर देते हैं तो आपका हार्ट का कंजेशन बढ़ जाएगा। जैसे आपका एंटी-प्रोबीएनपी ठीक चल रहा था लेकिन आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, और आपका एंटी-प्रोबीएनपी लेकिन अब बढ़ गया। तो ये एक ट्रेड है जो आपको बैलेंस आउट करना है कि आपके पेशेंट का जो यूरिया क्रिएटिनिन किस रेट से बढ़ रहे हैं और हम कैसे उसको बेसिकली उस पॉइंट पे रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो यूजुअली जो एमआरए की गाइडलाइंस ये है कि ये क्लास 1 ड्रग है। क्लास 1 ड्रग का मतलब है कि जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे होनी ही चाहिए, यानी जब आप पेशेंट देख रहे हैं तो आपको क्लास 1 का मतलब है कि जैसे कोई पेशेंट हार्ट अटैक का आ रहा है तो एस्प्रिन देनी ही देनी है, तो उसी तरह से है कि अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन पे एमआरए होनी ही चाहिए। सो इट इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी और डेथ से भी बचाएगी। जो भी ड्रग्स डेथ से बचाती हैं वो क्लास 1 ड्रग्स हैं, और हार्ट फेलियर मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन में ये क्लास 2 भी है, यानी जिन लोगों का ऑप्टिमाइज इजेक्शन फ्रैक्शन आ रहा है उसमें सेकंड है, लेकिन अगर रिड्यूस्ड है 30 है 35 है तो जरूर देनी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी क्राउडेड है और इसमें मैनेजमेंट डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली मोर्टेलिटी रिडक्शन जो ड्रग्स करती हैं वो SGLT2, MRA, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर और आर्नी है। और अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो हम स्टेज पाथवे पे आएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। So in what percentage of patients you use MRA for heart failure management?
सो जैसे अपन ने डिस्कस किया कि क्या मतलब जैसे आपकी क्या ओपिनियन है कि सारे पेशेंट्स पे चलेगा या क्लिनिकल डिस्क्रिशन होगा या किसको आप देंगे और किसको नहीं देंगे? डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर राकेश, So, डॉक्टर sir, वल्लभ शर्मा. according to ESC, mostly heart failure with reduced ejection fraction less than 35%. The flow chart already you have described: initiation with diuretics, then ACE inhibitors, then ARNI if the left fundal branch block is also there, and then we have to add MRA. Yes, you're right. Actually, you're right that the reduced ejection fraction patients should be on MRA. But those with preserved ejection fraction and vigorous ejection fraction, they usually have a class 2 indication, class 2B. यानी आपका डिस्क्रिशन है, क्लिनिशियन डिस्क्रिशन है कि वो कब स्टार्ट करना चाहते हैं. बट क्लास 1 में यू हैव टू ऐड देम एज सून एज पॉसिबल. So when do you consider starting MRAs in patient with heart failure along with ACE inhibitors, ARB and beta blockers? So again the same question कि आप कब किस sequence में add करेंगे? So usually diuretics, then beta blockers, then ACE inhibitor या ARNI, and then third or fourth number पे अपन MRAs add करते हैं. Next slide. This is about aldosterone escape in congestive heart failure. तो usually जो patients होते हैं हमारे क्यों नीड है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की? दैट पाथवे में जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड एल्डोस्टेरोन बढ़ने की वजह से दीज पेशेंट्स हैव मोर, मतलब उसके बाद में इनका कंजेशन और ये सब बढ़ सकता है. सो दैट्स व्हाई यू नीड बेसिकली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट. So this is one important drug in the pathway of heart failure management to treat the aldosterone escape. Next slide. Again, this is improvement in systolic function, significantly more in eplerenone group. This is important trial, the RILES trial, and this FSS trial. Both of these trials have given us the confidence that the patients improve on MRA and there is mortality reduction with these drugs. Next slide. So again very important question कि किस पेशेंट को आप एप्लेरोनोन देंगे, किस पेशेंट को आप स्पाइरेनोलॉक्टन देंगे, पर्सनल चॉइसेस क्या क्या रहती हैं, तो वो एक बार अपन जाने. डॉक्टर विनोद, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर ऋषि और डॉक्टर विकास, डॉक्टर वल्लभ शर्मा, डॉक्टर रणवीर, डॉक्टर कृष्णकांत. तो आप पेशेंट्स को क्या देना प्रेफर करते हैं, स्पाइरेनोलैक्टोन या एप्लेरोनोन, और इसके प्रोज मतलब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो स्ट्रेट अवे कॉस्ट है, एप्लेरोन महंगी की दवा है थोड़ी एंड स्पाइरेनोलैक्टोन सस्ती दवा है. और कोई एडिशन आपकी तरफ से? दूसरा सर, गवर्नमेंट सेटअप में भी स्पाइनोलेक्टोन फ्रीली अवेलेबल है, तो मोस्टली स्पाइनोलेक्टोन ही यूज होता है. लो कॉस्ट भी है, अवेलेबिलिटी का भी इश्यू है, तो स्पाइनोलेक्टोन मोस्टली यूज होता है. वेरी गुड. आई थिंक बेटर टॉलरेबल है स्पाइनोलेक्टोन. हाँ, बेटर टॉलरेबल. लेकिन अच्छा मेरे को ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट, आपको क्या लगता है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं खासकर गायनोकोमेस्टिया और ये जो होते हैं हाइपरकैलेमिया, कोई इनका डिफरेंस है क्या? Yes आपको sir. लगता है कि स्पाइरेनोलैक्टोन और एप्लेरोनोन यूज करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा? Yes sir. I think hyperkalemia and anti-androgen actions are less with eplerenone. Absolutely. And more with spironolactone. Yes. So तो कंपैरिजन जो मोस्टली होता है कि एक तो एप्लेरोनोन इज क्वाइट यूजफुल, इसका जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो स्पाइरेनोलैक्टोन इज हैव मोर इncidences ऑफ पेनफुल गायनोकोमेस्टिया इन कंपैरिजन टू एप्लेरोनोन. और हाइपरकैलेमिया का एविडेंस दोनों के साथ इक्वल है, बट एप्लेरोनोन के साथ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है. लेकिन फिर भी एप्लेरोनोन, अगेन देयर आर ऑल, बोथ ऑफ देम आर पोटेशियम. हाइपरकैलेमिया इज द साइड इफेक्ट. सो वॉचफुल तो दोनों से रहना पड़ता है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग एप्लेरोनोन और स्पाइरेनोलैक्टोन you have to monitor the potassium levels. But gynecomastia is a problem. So कभी-कभी जैसे मैं अपने पेशेंट्स में स्पाइरेनोलैक्टोन देता हूँ, लेकिन अगर gynecomastia की प्रॉब्लम होती है तो we switch over to एप्लेरोनोन.
So one point is that. And cost issues रहते हैं डेफिनेटली इंडिया में, मासेस में, गांव के पेशेंट्स हैं, आपको कॉस्टली ड्रग से ज्यादा एक इजीली अवेलेबल ड्रग देनी है, तो स्पाइरानोलोक्टोन मोस्टली प्रेफर्ड ड्रग है मासेस में. बट अगर आप पेशेंट अफोर्डेबल है और इन दैट मैटर आपको अगर क्वालिटी से मेरा मतलब एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स और ये कंसिडर करने हाइपरकैलेमिया, तो एप्लिरोनोन इज वन इम्पोर्टेंट ड्रग. महेंद्र जी, आपका क्या कहना है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक्चुअली वो ये सर मेनली वो ये कि जो पेशेंट इज हैविंग अ गाइडेड बाय वेस्टिजिया, एट दैट कंडीशन पे मतलब कि एससीपी हैज टू चेंज पेशेंट फ्रॉम एस्पालेक्टोन टू एप्लिनोन. इट इज अ मेन रीजन. और सेकंड रीजन से मेनी ऑफ द पेशेंट्स देयर मे बी चांसेस टू इंक्रीज द एचबीएनसी लेवल्स. तो सच टाइप ऑफ पेशेंट को वी कैन स्विच फ्रॉम एस्पालेक्टोन टू एप्लिनोन. HbA1c. हाँ सर, मेनी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स मे बी चेंजेस इन द एचबीएनसी लेवल्स. Absolutely. So important point जो महेंद्र जी ने अपने को डिस्कस किया कि yes, some of the patients with जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनका HbA1c levels चेंज हो जाते हैं. So in that case also you can also go to you can use the eplerenone rather than the spironolactone. Next slide. Again, spironolactone and eplerenone hyperkalemia management. So we most of the time अगर hyperkalemia, suppose आपने पेशेंट्स को स्टार्ट करी एप्लिरोनोन या स्पाइरानोलेक्टोन, अब उसका पेशेंट का पोटेशियम लेवल्स बढ़ गए, तो what are the things to be kept in mind and how do you approach this hyperkalemia with MRAs? आपका क्या ओपिनियन है? आपके पेशेंट्स को आपने स्टार्ट करी, अब उसका पोटेशियम लेवल बढ़ गया है, तो यू विल स्ट्रेट अवे स्टॉप द ड्रग, आप स्टॉप कर देंगे, आप कम करेंगे, या और कोई ड्रग्स की तरफ देखेंगे, या कुछ स्ट्रेट अवे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? तो व्हाट इज योर अप्रोच? हाउ विल यू हैंडल दिस? Sir, we have to yes, we have to see renal function again, whether there is worsening in the creatinine level. very good. First thing, and urine output, whether it is adequate or not, whether the person is Very going good. towards the hemodialysis or rather again can be managed conservatively. Besides that, AC inhibitors are also there in the loop. So if we can reduce dose of AC inhibitors, and we can use potassium binding resins like new drugs are patiromer or jo elixir solutions are there. And in chronic kidney disease patient, bicarbonates are also can be added in oral tablet form. You're right. Absolutely. Dr. Rishi, आपका क्या कहना है? Dr. Manish? Dr. Rishi, Dr. Manish? सर जनरली इन व्यू ऑफ MRAs के साथ में देखें तो जब पेशेंट कम्स विद हाइपरकैलेमिया तो आइडियली वी शुड स्टॉप MRA स्पेसिफिकली है तो. और बाकी कंबाइंड इफेक्ट के साथ में एस इनहिबिटर भी है, तो डोज रिडक्शन दोनों का जरूरी है. अगर पेशेंट का पोटेशियम लेवल रेज्ड हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, तो दोनों का डोज रिडक्शन अपने को करना चाहिए. So you're right. Basically, the understanding is that कि जब आपने स्टार्ट करी है, तो आपको ये देखना है कि एक तो लेवल ऑफ हाइपरकैलेमिया कितना हुआ है. फॉर एग्जांपल, आपने 4.5 पे स्टार्ट करी थी, 5.4 है, 5.5 है, तो आप उसको विदाउट रिडक्शन ऑफ एनी ड्रग, मतलब डोजेज इन द ड्रग डोजेज, यू कैन फॉलो द पेशेंट क्लोजली. जैसे 5.4 है, 5.5 तक यू कैन कंफर्टेबली गिव द ड्रग्स. बट आपको लगता है डेंजरस लेवल पे बढ़ने वाला है, फॉर एग्जांपल 5.7 हो गया, 5.9 हो गया, या 6 तक आ गया, तो आपको इमीडिएटली you have to see कि what you can do. For example, at this stage you should stop the MRA, क्योंकि आपको हाइपरकैलेमिया को प्रिवेंट करना है. तो एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स और MRA है, तो एस इनहिबिटर इज एन इंपॉर्टेंट ड्रग, यू शुड नॉट इमीडिएटली स्टॉप दैट. और आर्नी चल रही है, तो अगर आर्नी चल रही है तो यू शुड ऑल्सो नॉट स्टॉप दैट. रादर यू कैन डिक्रीज द डोज ऑफ एप्लेरोनोन, और यू कैन स्टॉप द एप्लेरोनोन क्वाइट सम टाइम. बट यू हैव टू सी अगेन, जैसे डॉक्टर राकेश ने कहा, आपने भी कहा कि आपको क्रिएटिनिन और पोटेशियम लेवल्स को देखना है दोनों की तरफ. इस अगर साथ में पोटेशियम लेवल्स भी वर्सन हो गए, जैसे आपने 1.5 पे स्टार्ट कर रही थी, अब वो 2 हो गया या 2.5 हो गया, तो थोड़ा आप स्लो हो जाओ.
you should stop one of the drug, half the dose of उस next drug कर लो और उसको carefully monitor करो. बट अगर 6 के ऊपर चला गया है तो आपको इमीडिएट पोटेशियम जो ट्रीटमेंट है, जैसे आपने डिस्कस किया कि जो रेजिन्स आते हैं इमीडिएटली वो आप स्टार्ट कर सकते हो. सोडाबाई का आपकी टैबलेट दे सकते हो, बट उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट में कितना रोल है ओरल ट्रीटमेंट का हाइपरकैलेमिया प्रिवेंट करने का, तो वो आपको देखना पड़ेगा. बट यू हैव टू सी व्हाट आर द अदर ड्रग्स, जैसे इवन बीटा ब्लॉकर्स कैन प्रमोट हाइपरकैलेमिया. सो कभी कभी बीटा ब्लॉकर्स को भी आप ब्लेम कर सकते हो कि ये बीटा ब्लॉकर्स की डोज बढ़ाने से हुआ है एंड ऑल दोस थिंग. बट यू शुड बी वेरी केयरफुल. जब हम पोटेशियम और यूरिया क्रिएटिन देख रहे होते हैं तो यू हैव टू सी व्हाट इज द चेंज इन द परसेंटेज ऑफ यूरिया क्रिएटिन. डॉक्टर विनोद, आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर विनोद? नहीं सॉरी सर, मैं खोला गया था, मैं सुन नहीं पाया. कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं दिक्कत. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So what is the preferred dose? How is the dose titration carried out in your practice? जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पाइरोनोलोक्टेन 25 मिलीग्राम स्टार्ट करी है, तो आप कैसे उसको बढ़ाओगे और क्या कितने बढ़ाने तक जाओगे? मोस्टली जो पेशेंट्स हैं जैसे 25 पे ही स्टार्ट होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 4 वीक्स 6 वीक्स में आप देखते हो पेशेंट की टॉलरेबिलिटी क्या है, क्रिएटिन यूरिया क्रिएटिन कितने हैं और किस लेवल का पेशेंट है. फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का पेशेंट है, तो आप इफ यू इंक्रीज द ड्रग टू 50 मिलीग्राम, देन यू शुड स्टार्ट बेसिकली एम करना चाहिए जितनी भी हार्ट फेलियर ड्रग्स हैं उनको इंक्रीज करने का धीरे 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 धीरे. फॉर एग्जांपल आपने आर्नी स्टार्ट करी है तो धीरे धीरे आप उसकी डोज बढ़ाते हो, बिकॉज जो भी क्लिनिकल बेनिफिट्स आए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने आर्नी ऐड कर दी, बीटा ब्लॉकर ऐड कर दिए तो हमें मोर्टेलिटी रिडक्शन हो जाएगी. लेकिन आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जितनी भी ट्रायल्स में मोर्टेलिटी रिडक्शन शो हुआ है वो कौन सी डोज पे हुआ है. मतलब जैसे आर्नी में डोज है 200 मिलीग्राम बीडी तक, तो आप अगर 200 मिलीग्राम बीडी तक जा रहे हो तो आप बात कर सकते हो कि हाँ इसकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी. इसी तरह से बीटा ब्लॉकर्स है, फॉर एग्जांपल मेटोप्रोलोल 200 मिलीग्राम तक जा सकते हैं, आप बिसोप्रोलोल की 10 मिलीग्राम तक जा सकते हो, कार्बाडोल की नॉर्मली 25 तक जा सकते हो कंट्रोल रिलीज में, और उससे भी ज्यादा 30 मिलीग्राम तक जा सकते हो कार्बाडोल में. सो जितना हायर डोज पे मोर्टेलिटी रिडक्शन होता है वो धीरे धीरे अप्रोच करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन. तो इसी तरह से एप्लेरोनोन और स्पाइरोनोलोक्टेन की यूजुअली 50 तक कंफर्टेबल है, लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं स्पाइरोनोलोक्टेन के वो 100 मिलीग्राम तक जा सकते हैं. आपकी कोई ओपिनियन है तो बताएं डॉक्टर विनोद, डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर राकेश. नहीं वो सेम ही है. ओके, जनरली 50 तक लेके जाते हैं 50 पर डे स्पाइरोनोलोक्टेन. हाँ, सर विवेक सर नॉर्मली स्टार्ट तो 50 मिलीग्राम से करते हैं, 25 से करते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स में. नहीं स्टार्टिंग 25. Usually the dictum is to start with 25 and you can go on increasing the drug. Next slide. So MRA related hyperkalemia is quite common. 9.3% patients में होता है, and out of which 50% was truly related to MRA. तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि हाइपरकैलेमिया हो गया पेशेंट को, तो 50% चांस है कि वो जो आपका हाइपरकैलेमिया हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ MRA. दैट मींस हाफ ऑफ द टाइम आप एप्लेरोनोन या उसको ब्लेम नहीं कर सकते. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो पेशेंट का हाइपरकैलेमिया हुआ है उसके लिए बीटा ब्लॉकर जिम्मेदार हो सकता है, उसके लिए आपका आर्नी जिम्मेदार हो सकती है, उसके लिए आपका SGLT2 भी कभी कभी जिम्मेदार हो सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड. So we are just approaching to the close of the session. So what percentage of heart failure patients on MRAs develop hyperkalemia, and do they require discontinuation of the treatment that we have discussed? So percentage of patients, a lot of patients develop this hyperkalemia, and do we require to discontinue the treatment? No, we don't need to discontinue the treatment, but we have to carefully observe them. What is the amount of hyperkalemia? What is the azotemia that we are having? And how much is the need to reduce the drug or review the patient? And if yes, how many percentage of patients, how are these patients managed? Again, hyperkalemia, once we have treated dangerous hyperkalemia, admit the patient, discontinue all the drugs,
and start with potassium decreasing measures. सोडा बाइकार्ब है, ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप है, एस्थिलीन नेबुलाइजेशन है, ऐसे करके 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो अपन हाइपरकैलिएमिया में देते हैं. एंड ओपीडी पेशेंट है तो उसकी डोज रिडक्शन कर सकते हैं, और दोनों आर्नी की डोज रिडक्शन कर दी, एप्लेरोनोन की कर दी, एंड देन यू कैन रिव्यू द पेशेंट इन 1 or 2 weeks. आपकी कोई ओपिनियन हो तो बताएं. Dr. Vinod, Dr. Rakesh, Dr. Rishi, and other people who are also there, they can share their opinion. कोई important point आपको जो लगता हो आपकी practice से कि नहीं, this is one more point that we should have. Okay, next slide. So timing of eplerenone initiation is and outcomes ये है. This is FSS trial that they started soon after the myocardial infarction. So जो दो subset of patient होते हैं, एक acute MI के heart failure patient और एक जो patient होते हैं जो already known heart failure patients होते हैं, and then they come for hospitalization for heart failure. So usually the practice is to start, जो acute MI के patients होते हैं उनमें हम लोग जल्दी start करते हैं, and जो दूसरे patients होते हैं उनको OPD में start करते हैं, या once they are stabilized for the acute stage, then you start the eplerenone. Next slide. So earlier administration, usually 3 to 7 days, improve outcomes in patients with LV systolic dysfunction and heart failure post acute MI. So normally 48 hours के बाद में आप ये वाली drug start कर सकते हो. 72 hours के बाद, मतलब 24 to 72 hours के बाद में. And it is said that earlier you start, the better it is. तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला हो तब आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन देखना चाहिए कि हमने इस पेशेंट को एप्लेरोनोन स्टार्ट करी है या नहीं करी है, स्पाइरोलेक्टिन स्टार्ट करी है या नहीं है. सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट स्लाइड. सो अगेन द सेम पॉइंट, यूजुअली हाउ अर्ली डू यू वांट टू स्टार्ट एमआरए इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स. सो आपका एक्यूट एमआई पेशेंट है तो यूजुअली थर्ड डे आप उसको एप्लेरोनोन ऐड कर दीजिए, और दूसरे पेशेंट जो नॉन एमआई पेशेंट्स होते हैं उनमें आप ओपीडी में जो पेशेंट्स देख रहे हैं, यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दी एमआरए. नेक्स्ट स्लाइड. सो अगेन क्लास 1 थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एमआरए, dapagliflozin, empagliflozin, loop diuretics, again. So these are the most important drugs, class 1 drugs. और जो पेशेंट स्टेबलाइज नहीं होते हैं उनके लिए आईसीडी, सीआरटीडी है, जो कि एडवांस थेरेपी होती है हार्ट फेलियर की. एडवांस इन द सेंस की स्टेज प्रोग्रेशन हो जाती है जिन पेशेंट्स की, क्लास स्टेज सी और स्टेज डी में जो पहुंच जाते हैं पेशेंट्स, उनके लिए आईसीडी और सीआरटीडी आप सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने के लिए कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. So at what stage heart failure diuretics MRA both are needed? What is the preferred choice? So basically जब diuretics देते हैं तो हमेशा diuretic plus एप्लेरोनोन देनी चाहिए, या खाली diuretics देनी चाहिए, या खाली एप्लेरोनोन देनी चाहिए, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. तो यूजुअली अपन जैसे डायटोर प्लस देते हैं या लेसिलेक्टोन देते हैं तो उसमें डायरेटिक मिली रहती है. तो आपका क्या ओपिनियन है कि किस पेशेंट में कौन सी आप प्रेफर करते हैं? Dr. Vinod, Dr. Rakesh, Dr. Rishi. सर आपकी वॉइस. Sir, in general, in our clinical practice, actually the spironolactone plus torsemide, both in combination, we have started initially. So most of the time, the combination. Right. Most of the time, we have to see the assessment for the need of chronic therapy for diuretics. Yeah. आपका पेशेंट अगर इस तरह का है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो एक मेंटेनेंस डोज उनकी यूजुअली रिक्वायर्ड होती है. बट अगर आपका पेशेंट ऑलरेडी ड्राई है और यूवोलेमिक है, तो यू मे स्टॉप द डायरेटिक एंड कैन कंटिन्यू विद ओनली द स्पाइरोलेक्टोन और एप्लेरोनोन. बट मोस्टली जो टॉर्सेमाइड और एप्लेरोनोन हम साथ में देते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा माना गया है कि टॉर्सेमाइड भी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है. तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉर्सेमाइड और एप्लेरोनोन है उसमें पोटेशियम लेवल्स कैसे हो रहे हैं.
और यूजुअली लेसिक्स और टॉर्समाइड में यही है कि लेसिक्स थोड़ा ज्यादा पोटेशियम लॉस करती है, तो बट इसका कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं है कि भाई कौन सी ड्रग आपने, बट दिस इज फॉर द क्लिनिकल जजमेंट दैट यू हैव टू यूज. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide, Mahendra ji. Yes, sir, this is last. So again, in your practice, any other indication apart from heart failure where MRAs ऐसी है और कोई conditions हैं जिनके लिए spironolactone use होता है या eplerenone use कर सकते हैं हम? In ascites and in refractory hypertension, hyperaldosteronism. Absolutely. बिल्कुल आपने सही कहा कि जो refractory hypertension के patients हैं जो 3 और 4 drugs पे भी control नहीं हो रहे हैं, उसमें आप eplerenone ऐड कर सकते हैं, spironolactone ऐड कर सकते हैं, and they usually get good results. And जो हमारे CLD के patients हैं उनमें अभी अपन spironolactone यूज करते हैं, hyperaldosteronism में भी यूज करते हैं. So this is one important good advice. So now lastly they want to ask what scientific initiatives would you suggest to Cipla for increasing awareness? आपको क्या लगता है कि लोग अपन awareness और कैसे increase कर सकते हैं इसके बारे में? Awareness in the sense कि amongst doctors basically कि बहुत जगह अपन you see papers कि जैसे आपके पास और दूसरी जगह से patient आता है and you don't see any MRA in the prescription. तो आपको क्या लगता है कि मतलब डर की वजह से स्टार्ट नहीं होते हैं या कोई और चीज है उसकी वजह से, या उनको हार्ट फेलियर थेरेपी के लिए मतलब ऑप्टिमाइजेशन कम है? Most common causes are financial stress of the patient. Economically, patients are not compliant to 3 products. Absolutely. So as a doctor हम जो स्टार्ट करते हैं कभी जो पेशेंट्स हम जैसे पुअर पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट देख रहे हैं तो हमारा एम रहता है कि हम उसको एक ऑथेंटिक और थोड़ा फ्रेंडली पर्चा भी दे पाए. बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कभी कभी कि पेशेंट को वो ड्रग्स देखना जरूरी है जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि जो जैसे अपन हार्ट फेलियर पेशेंट देख रहे हैं और हम उसको एक इम्पॉर्टेंट ड्रग जो उसकी लाइफ बढ़ाएगी उसको बताना है कि भाई आपको ये 4-5 ड्रग्स जिंदगी बढ़ाती हैं, आपकी हार्ट की उम्र बढ़ा सकती हैं, तो अगर ये बंद करते हो तो उसका कोई वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए. जैसे बहुत बार अपन पेशेंट को दवा देते हैं और वो बंद कर देते हैं, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और ये बंद यूजुअली नहीं होनी चाहिए. और जहां तक पैसे की बात है, जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग ये डिस्कस करते हैं, जैसे आजकल फ्री योजना चल रही है अपनी मेडिसिन की, तो मैं उसको पेशेंट्स को कहता हूँ जो गांव में है इधर उधर कि आप ये ड्रग्स आपकी मर्जी आए जहां से ले लो, मतलब उसका जेनेरिक फॉर्म लिख के कि आप ये ड्रग्स कहीं से भी ले लो, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड ड्रग ही लो, लेकिन आपको अगर जहां से भी मिल रही है ये आपको लेनी जरूरी है. और एट द सेम टाइम हम जैसे आपस में अपन लोग डिस्कस करते हैं तो यूजुअली अपन अप्रोच करते हैं अपने फेलोज से और अपने कलीग से, जब अपन डिस्कस करते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं तो मोस्टली एक अवेयरनेस बढ़ती है. तो बाकी महेंद्र जी आप बताएं सिप्ला का क्या इनिशिएटिव है अवेयरनेस के लिए? सर एक्चुअली में वही था कि दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच वी हैव कंडक्टेड फॉर अवेयरनेस, especially because still if we talk about the second touchdown, the many of the heart failure patients is underdiagnosed. They are not taking the proper treatment. So that is the main reason we are conducting such meetings so that each and every patient they can take the right treatment for the management, for the quality of life improvements. हाँ एब्सोल्युटली. ये जो जैसे अपन जो CME करते हैं उसका मेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेज इज टू रियली डिस्कस अमंग्स आवरसेल्व्स. सो सर वही था कि सेकेंडरी टेस्टिडाउन में जैसे व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन डू, तो जैसे आपने बताया था कि प्रोबीएनपी टेस्ट वी कैन डू, क्योंकि इको आई थिंक इको मेनी ऑफ द टेस्टिडाउन में इट इज नॉट अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी, बट वहां पे जो प्रोबीएनपी वाला टेस्ट है वो अपन एक एटलीस्ट इट इज अवेलेबल द सेकेंडरी टेस्टिडाउन. हां और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वंस वी हैव डायग्नोस्ड द पेशेंट, और अवेयरनेस डेफिनेटली हमें कलीग्स के साथ डिस्कशन से ही आएगी. नॉर्मली हम पढ़ते हैं कहीं पे देखते हैं तो हमें आती है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स और हम आपस में डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है कि कौन सी लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. कभी कभी होता है बहुत बार नहीं पढ़ते हैं अपन, लेकिन अपना सुना हुआ होता है कि नहीं, जैसे अपन अपने डिस्कस किया कि नहीं क्लास 1 है क्लास 3 है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहता है. सो बट आई एम रियली थैंकफुल टू सर वो अर्लियर टाइम में मतलब मेनी ऑफ the digoxin and beta blocker, but now I think all these drugs are outdated.
And नहीं, बीटा ब्लॉकर तो डेफिनेटली मेन स्टे है, लेकिन रोल ऑफ जो डिजॉक्सिन है Yes. वो जैसे डिग ट्रायल हुई थी, इसके लिए एक ट्रायल थी जिसका नाम था डिग ट्रायल। डिग ट्रायल में ये मालूम पड़ा कि दैट दी इससे मोर्टेलिटी रिडक्शन नहीं होती लेनॉक्सिन से। Yes, sir. तो जो चीज से मोर्टेलिटी रिडक्शन नहीं होती वो थोड़ा पीछे सरक जाती है। तो लेनॉक्सिन एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, अगर आपने आपके पेशेंट पे स्टार्ट कर दी है तो नॉर्मली उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो पेशेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं लेनॉक्सिन पे, उनका लेनॉक्सिन हटाने से उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ जाती है। तो मेनली लेनॉक्सिन जो है वो सेकेंड या थर्ड लाइन ड्रग है, एंड इसका एक बेनिफिट बस खाली ये है कि हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाती है, इससे मोर्टेलिटी तो कम नहीं होती, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जो एक पैरामीटर जो हम जज करते हैं कि मोर्टेलिटी भी कम हो जाए और हॉस्पिटलाइजेशन भी ना हो, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन कम करती है लेनॉक्सिन। और बीटा ब्लॉकर तो खैर डेफिनेटली गोल्ड स्टैंडर्ड है, उनको तो आप हाथ ही नहीं लगा Yes, sir. they will always be there. Yes, sir. So Mahinder sir, I am really Yes, sir. thankful for this wonderful audience. हमें बहुत मतलब राकेश सर से, विनोद जी, ऋषि जी, Yes, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। I mean really we had a good discussion और मुझे अच्छा लगा आपके व्यूज जान के, and we really had a good time discussing. So any other queries you want to ask to Vivek sir, so you can ask apart from these queries अगर आपको लगता है, मनीष सर कुछ भी आपको लगता है कि भाई queries हो, you can ask. मनीष सर माइक म्यूट है सर आपका। No, sir. No. Yes. Yes, sir. Mani sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा, really it was good discussion and we should be able to help our patients. Yes. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thanks a Thank lot. you, sir. Thank you, Thank Mahinder you. ji. Thank you. Yes, sir. Thanks, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. Good night, sir. Good night, sir. Bye. Good night. Thank you very much to Rishi sir. Thank you very much to Rakesh sir, Nish sir, AK sir. Anybody from Rhythms? Hello. हाँ मैडम, हाँ मैडम, मीटिंग इज ओवर है ना, आप मीटिंग मीटिंग इज ओवर। Okay. Okay, thank you very much.